Hello students, we have finished part 1 and part 2 of the chapter Jalebis. So now onward we will start the part 3 of the chapter. Okay, so let's start now. Before starting the part 3, I would like to summarize the part 1 and part 2. Okay, so when the little boy was going to school, okay, uh, keeping money in his pocket to pay the fee for that month. Okay, so when he reached to school, he came to know that the teacher who collects the money is absent today. He is on leave today, and the money will be collected tomorrow. So, and while returning to home in bazaar, he was tempted to buy the jalebis. Okay, and he bought the jalebi. He ate himself and distributed among the other children too. Okay, now when he spent his all money on buying the jalebis, okay, now he is feeling guilty that how he will collect the money to pay the fees. And beside this, he also thought that before earlier he was thinking that he will get the scholarship money of the previous month, and he will pay the fees for the from the scholarship money, and so he spent the money of the fees thinking that he will pay the fees from scholarship money. And when he went after eating the jalebis and all, when he went to the school, he came to know that the previous month scholarship will be distributed in following month. It means the next month. Okay, now his head started spinning, like what will he do now? Okay, from where he will pay the fees? Okay, and now he is imagining the angry face of the teacher Gulam Muhammad sir, because he was collecting the fees, and now he is the boy is scaring that what will he do, what will Gulam Muhammad sir will do with him. Okay, so, scaring from these things, he left the school. He tucked the bag under his arm and he left the school. Okay, and he reached to the railway station, and he is thinking there sitting like how he will get the money to pay the fees. Okay, so now start the part 3. So remorseful and so remorseful and scared, he prays God for monetary fund. Okay, remorseful means to in the state of remorse or to be sorry. Now he is sorry for that whatever he had done. Okay, so remorseful and scared, डरा हुआ और दुखी जो है सॉरी फील करते हुए, ही प्रेज टू गॉड फॉर मॉनेटरी फंड. मॉनेटरी मीन्स फाइनेंशियल हेल्प. ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प के लिए, मॉनेटरी हेल्प के लिए ही इज प्रेइंग टू गॉड. ही मेक्स मैटर्स लुक नॉर्मल बट प्रेज हार्डर देन एवर. वो दिखाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, बट ही प्रेज हार्डर देन एवर. इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा प्रेयर करता है. ही द इनविटेबल हैपन्स दो समवेयर अलोंग द वे ही नोटिसेस द डिवाइड बिटवीन द फैंसीफुल एंड द फैक्चुअल. ये जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ था, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ज़रूरी भी था होना. ठीक है, ये ज़रूरी घटना घटने से, ठीक है ना, दो समवेयर along the way he notices the divide between the fanciful and the factual. Now he is able to understand there is difference between the fanciful, it means the imaginative things, and the factual thing. ठीक है, imagination काल्पनिक और वास्तविकता में जो difference है, now he is able to understand कि अलग अलग चीज़ें होती हैं. ठीक है, जो जैसा सोचता है वैसा हो ही जाए ये ज़रूरी नहीं है. बिकॉज अर्लियर ही वॉज imagining that he will spend the fees money to buy the जलेबी, and he will pay the fees money from the scholarship money. ठीक है, सोचा था कि फीस से वो जलेबी इंजॉय कर लेगा और स्कॉलरशिप मनी से क्या कर लेगा, फीस पे कर देगा. बट नाउ दिस इज गोइंग
अपोजिट टू दैट, ठीक है, अब एकदम अपोजिट हो गया, बिकॉज स्कॉलरशिप मनी तो उसे मिलने से रही, नाउ ही इज थिंकिंग व्हाट टू डू. ओके, सो the para is, there was a shed. Okay, from here we are starting now. There was a shed giving tree beside the railway tracks. Railway tracks के जो साइड साइड में है वो ट्रीज लगे हुए हैं जिससे छाया मिल रहा है, ठीक है. I sat under it and wondered whether they could possibly be a more of unfortunate child than me in this world. मैं उसके नीचे बैठ गया, मैं घने छाँव, पेड़ के छाँव के नीचे बैठ गया. नाउ आई एम थिंकिंग, क्या हमसे भी ज़्यादा अभागा बच्चा कोई होगा इस दुनिया में, अनफॉर्चुनेट, क्या हमसे भी ज़्यादा बदकिस्मती बच्चा कोई होगा क्या इस दुनिया में. When the coins had first created a racket in my pocket, the entire matter seemed so simple and straightforward. जब मेरे पॉकेट में कॉइन्स जो है रैकेट करना स्टार्ट किया था, व्हेन दे स्टार्टेड क्रिएटिंग नॉइज, एंड दैट टाइम द इंटायर मैटर सीम सो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. उस समय जो पूरा का पूरा ये मैटर था वो बहुत सिंपल सा दिख रहा था, एंड इट वाज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा साधा सा था कि ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, लाइक फीस के पैसे से जलेबी खरीद लेंगे, जलेबी स्कॉलरशिप के पैसे से फीस जमा कर देंगे, ये सारी चीज़ें बहुत सीधी सीधी सी दिख रही थी, ठीक है. Like eat jalebis with the fees money and then pay the fees with the scholarship money. I thought that 2 and 2 added up to 4 and could never be 5. मैंने सोचा था कि 2 और 2 जोड़ने पे 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं. मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो 5 भी हो सकते हैं. How was I to know that sometime it added up to 5 as well. मैं ये कैसे नहीं जान पाया था, how was I know that sometime, मैं ये कैसे जान पाता कि कभी कभी 2 और 2 5 भी हो सकते हैं. Had I known that I would get the scholarship the month, I would have postponed my जलेबी eating program to the next month as well. ठीक, अगर मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप मुझे अगले महीने में मिलेगी तो मैं अपने जलेबी खाने का जो प्रोग्राम है वो मैं अगले महीने के लिए पोस्टपोन कर देता. नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग अ फ्यू जलेबी फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज एबसेंट फ्रॉम द स्कूल एंड क्राउचिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री इन अ डेजर्टेड कॉर्नर ऑफ द रेलवे स्टेशन. नाउ ही इज थिंकिंग दैट कि नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग द जलेबी फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मतलब अपनी ज़िंदगी में पहली बार उसने कोई गलती करी थी. और कौन सी गलती है, जलेबी, थोड़े कुछ जलेबी खाने की जो गलती करी थी उसने, उसकी वजह से उसे स्कूल से एब्सेंट होना पड़ रहा. आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल से एब्सेंट था. और मैं यहाँ क्राउचिंग मीन्स टू हाइड, यू कैन से, ठीक है, यहाँ ट्री के शेड में आज मैं हाइड कर रहा हूँ, खुद को छुप रहा हूँ. डिजर्टेड कॉर्नर ऑफ द रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन से कहीं दूर डेजर्टेड कॉर्नर है जो सुनसान सी जगह है, वहाँ पे मुझे छिपना पड़ रहा है. सीटिंग देयर अंडर द ट्री एट फर्स्ट आई फेल लाइक क्राइंग, और उस पेड़ के नीचे बैठे हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आई आई फेल लाइक क्राइंग, ठीक है, मैं बिल्कुल रोने जैसा महसूस हो रहा था कि मैं रो दूँ. Then I felt like laughing when it struck me that the tears I was shedding were not tears but drops of जलेबी syrup. और मुझे हंसी आ गई जब मैंने ये रियलाइज़ किया, ठीक है, मैंने ये महसूस किया कि जो आंसू मेरे गिर रहे थे, when I was crying, the tear that was coming out from my eyes were actually not water, ठीक है, वो टीयर नहीं थे, एक्चुअली में वो क्या थे, जलेबी के सिरप निकल रहे थे, ठीक है. सो आई लाफ्ड एट माई सेल्फ कि इतना ज़्यादा मैंने जलेबी खाया था कि आंसू भी क्या निकल रहे हैं, जलेबी की सिरप ही निकल रहा है. फ्रॉम द जलेबीज माई थॉट्स वेंट टू द फीस एंड फ्रॉम फीस टू मास्टर गुलाम Muhammad's cane, and from his cane I thought of God. और यहाँ जलेबी का सोच करके मुझे फीस का याद आ गया. माई थॉट वेंट टू द फीस, मैं फीस के बारे में सोचने लग गया. फीस से देन मास्टर गुलाम मोहम्मद की छड़ी याद आ गई मुझे. एंड फ्रॉम हिज केन, उनकी छड़ी से आई थॉट ऑफ गॉड, मैं सीधे कहाँ पहुँचा, भगवान के पास, भगवान बचा लो मुझे, बिकॉज ही वॉज करिंग सो मच बिकॉज ऑफ द punishment, okay, that Ghulam Muhammad sir was used to give him. जो गुलाम मोहम्मद सर बच्चों को पनिशमेंट देते थे उससे बहुत डरता था वो. आई क्लोज माई आइज एंड बिगन टू प्रे, मैंने अपनी आंख बंद करी और क्या करने लग गया, भगवान का प्रे करने लग गया. अल्लाह मियाँ आई एम वेरी गुड बॉय, एंड व्हाट ही इज़ प्रेइंग कि अल्लाह मियाँ मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ. आई हैव मेमोराइज द इंटायर नमाज, एंड देन ही मेमोराइज द इंटायर नमाज. I even know the last
10 surahs of the Quran by heart. और जो कुरान के कुछ टाइटल हैं सूरत नाम के, ही read that if you wish I can recite the entire ayatul kursi for you just now. और then he said to अल्लाह मियाँ कि अगर आप चाहें, if you wish, अगर आप चाहें तो मैं पूरा आयातुल कुर्सी भी आपके लिए अभी के अभी पढ़ सकता हूँ. The need of your devoted servant is only the fee money that I ate the jalebis with. और आपके इस डिवोटी का एक ही नीड है, एक ही ज़रूरत है कि प्लीज़ मुझे फ़ीस की मनी दे दीजिए जिससे मैंने जलेबी खा ली थी. सो ऑल राइट, आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक. ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आई मेड अ मिस्टेक, मेरे से गलती हुई है. आई डिडेंट ईट देम ऑल माई सेल्फ, लेकिन मैंने वो सारा खुद से नहीं खाया. मैंने जो 4 रुपए की जलेबी खरीदी थी मैं खुद नहीं खाया हूँ सारा. दो आई फेड देम टू अ होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू, मैंने बाकी बच्चों को भी फेड किया है, उन लोगों को भी खिलाया है मैंने. बट येस इट वॉज ए मिस्टेक, लेकिन हाँ ये गलती थी. इफ आई वुड नो द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ आई वुड नाइदर हैव ईटन देम नॉर फेड देम टू अदर्स. अगर मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप मनी नेक्स्ट मंथ में दी जाएगी तो ना मैं खुद खाया होता, ना मैं दूसरे बच्चों को खिलाया होता. I would neither have eaten them nor fed to others. Now you do one thing. अब आप बस एक काम कीजिए, just put your 4 rupees, just put 4 rupees in my bag. बस मेरे बैग में 4 रुपीज डाल दीजिए. If there's a पैसा more than 4 rupees, he's saying that कि if there's a पैसा more than 4 rupees, I will be very displeased with you. कह रहा है कि अगर 4 रुपए से एक भी पैसा ज़्यादा हुआ तो मैं आपसे नाखुश हो जाऊंगा. ठीक है, वॉट यू मीन कि मुझे सिर्फ 4 रुपए की ज़रूरत है, आप प्लीज़ बस 4 रुपए मेरे बैग में डाल दो. आई प्रॉमिस इफ आई हैड नेवर ईट स्वीट, if I ever eat sweets with my fees money again, then let a thief punishment to me my punishment. मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मैं फिर कभी भी फीस के पैसे से अगर मैं मिठाई खाता हूँ तो एक जो चोर का जो पनिशमेंट, जो जो दंड चोर को मिलता है वही दंड आप हमें भी देना. सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट. सो अल्लाह मियाँ बस इस बार, सिर्फ इस बार मेरी हेल्प कर दीजिए. देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनी थिंग योर ट्रेजरी, और आपके खजाने में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है. हियर ट्रेजरी मीन्स खजाना. ठीक है, सो देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी, आपके खजाने में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है. इवन आर चपरासी टेक्स अ होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ, इवन तक कि हमारे यहाँ का जो चपरासी भी है उसे भी बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा लेके हर महीने जाता है. एंड अल्लाह जी, आफ्टर ऑल आई एम अ नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर, कहता है कि और अल्लाह जी मैं एक बड़े ऑफिसर का भतीजा हूँ. वॉन्ट यू गिव मी सर जस्ट 4 रुपीज़, क्या आप मुझे 4 रुपये नहीं दे सकते क्या, मैं इतने बड़े ऑफिसर का भतीजा भी हूँ. ठीक है, लाइक ही इज़ जस्ट डीलिंग, ही इज़ लाइक जैसे हम मम्मी को मनाते हैं, पेरेंट्स को मनाते हैं, वो भगवान को मना रहा है, गॉड को मना रहा है कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ गिव मी 4 रुपीज़ ओनली. ओके, आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर्ड नमाज. जब प्रेयर किया मैंने, प्रेयर के बाद मैंने नमाज भी ऑफर किया. रिसाइटेड 10 सूरत, ठीक है, सूरत भी हमने पढ़े, आयातुल कुर्सी पढ़ी, कलमाए तैयब पढ़ा. ठीक है, इनफैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर्ड, इनफैक्ट जो जो मुझे याद था आई रिसाइटेड एवरीथिंग देयर. ठीक है, देन आई ब्लू ओवर देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग छू, और उसके बाद मैंने क्या किया, अपने बैग को फूक मारा छू कहते हुए. देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह आई रियलाइज दैट व्हाट दे सेड वाज ओनली टू ट्रू. और उसके बाद मैंने बिस्मिल्लाह करते हुए, आई मीन दिस इज द वर्ड सेड व्हेन वन स्टार्ट समथिंग. ठीक है, जब कुछ भी करते हैं, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले बोलते हैं बिस्मिल्लाह. ठीक है, तो मैंने बैग को छू किया और उसको फूक मारी कि जो भी कुछ भी बुरा चीज़ होता है अगर तो वो गायब हो जाएगा वहाँ से. ठीक है, उसके बाद जब मैं उस टाइम रियलाइज़ किया, ठीक है, आई रियलाइज दैट व्हाट दे सेड वाज ओनली ट्रू. मैंने रियलाइज़ किया कि जो वो कहते हैं वो सब सही था. नो वन कैन इरेज दैट फेट हैज डिक्रीड, कह रहा है कि कोई भी जो कहा गया है वो सत्य है कि नो वन कैन इरेज दैट फेट हैज डिक्रीड, किस्मत
जो लिखा है वो कोई मिटा नहीं सकता। ठीक है, उस टाइम मैंने रियलाइज किया, ठीक है, कि जो किस्मत में जितना लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। फॉरगेट 4 रुपीज, देयर वारंट इवन 4 पैसे इन माई बैग। 4 रुपए तो छोड़ो, 4 पैसे भी मेरे बैग में नहीं थे। एज ही वॉज रिक्वेस्टेड एज ही रिक्वेस्टेड टू गॉड टू सेंड टू ड्रॉप 4 रुपीज इन हिज बैग। ठीक है, एंड ही रिसाइटेड मेनी नमाज एंड ऑल, एंड ही प्रेड फॉर द गॉड। ठीक है, प्रे किया था उसने गॉड का, फिर नमाज वगैरह पढ़ा था, बहुत चीज़ें उन्होंने रिसाइट करी थी। देन ही थॉट कि अब तो मेरे बैग में पैसे आ ही गए होंगे। और यहाँ जब वो बैग देखता है तो 4 रुपये तो क्या, 4 पैसे भी बैग में नहीं थे। ठीक है, जस्ट अ फ्यू टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक। क्या था बैग में? सिर्फ कुछ किताबें और कुछ कॉपीज पड़ी हुई थी। 1 पेंसिल, 1 शार्पनर, 1 ID कार्ड, माई मामूज हैड सेंट मी लास्ट ID। और क्या पता, एक पेंसिल था, एक शार्पनर था और ओल्ड ID कार्ड था जो उसकी मामा ने उसे दिया था। आई फेल लाइक क्राई एज लाउड एज आई कुड। और उस टाइम मुझे लगा कि जितना तेज हो सके मैं चिल्ला दूँ, रो लूँ। बट देन आई रिमेंबर दैन स्कूल मस्ट हैव एंडेड एंड द चिल्ड्रेन मस्ट बी ऑन देयर वे होम। और तभी मुझे याद आया कि स्कूल तो ओवर हो गया होगा, स्कूल मस्ट बी एंडेड। ठीक है, स्कूल ओवर हो गया होगा एंड चिल्ड्रेन मस्ट बी ऑन देयर वे होम, और बच्चे भी अब घर जा रहे होंगे। So, tired and defeated, I got up from there and walked to the bazaar and waited for the school bell to ring। और मैं थका हारा वहाँ से उठा और बाजार की तरफ चल दिया। ठीक है, बिकॉज द स्कूल वॉज सिचुएटेड नियर बाय द बाजार, बाजार की तरफ चल दिया एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग। अब वहाँ वेट कर रहा है कि स्कूल बेल रिंग हो, सो दैट व्हेन द चिल्ड्रेन केम आउट आई टू वुड walk home with them as कम इफ आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम द स्कूल। और वो इसलिए वेट कर रहा था कि बेल लगे तो बच्चे निकलेंगे जब बाहर, तो उनके साथ मैं भी अपने घर की तरफ चलने लग जाऊंगा, तो उससे ये लगे कि मैं सीधे स्कूल से आ रहा हूँ। आई डिडेंट इवन रियलाइज दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर द जलेबी वाला शॉप। और मैंने ये भी रियलाइज नहीं किया कि मैं जलेबी वाले के शॉप के बगल में खड़ा हूँ। सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट, क्यों भाई, सेल आई वे अ रुपी वर्थ, डोंट वांट जलेबी टुडे। और उसने कहा, कौन, हलवाई ने कहा कि क्यों भाई, आज जलेबी नहीं चाहिए क्या, बांध दूँ 1 रुपए की जलेबी। I felt like saying, I won't eat your jalebi today, but I would sure like to roast your liver and eat that instead। और मुझे मेरे मन में आया कि ये कह दो उससे कि नहीं, आज मैं तुम्हारी जलेबी नहीं खाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारी कलेजी रोस्ट करके तुम्हारा लिवर खाऊंगा जलेबी की जगह पे। ये मन में आया कि मैं कह दूं, बट आई wasn't feeling too well that day, so I simply moved on। लेकिन उस दिन मैं कुछ ठीक नहीं महसूस हो रहा था, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, दैट्स वाई आई सिंपली मूव्ड अवे साइलेंटली। मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप से वहाँ से आगे बढ़ गया। द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग। और अगले दिन भी मैंने सेम चीज़ किया। आई गॉट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम। मैं उठा, तैयार हुआ और घर छोड़ दिया। वेंट अप टू द स्कूल गेट एंड देन टर्न ऑफ टू द रेलवे स्टेशन। स्कूल गेट तक पहुंचा और वहां से रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़ गया। अंडर द सेम ट्री आई सैट एंड बिगेन टू से द सेम प्रेयर्स। और उसी पेड़ के नीचे बैठ करके मैं वही सेम सेम प्रेयर्स मैंने रिसाइट करने शुरू कर दिए। आई रिपीटेडली प्लीडेड। मैं बार बार भगवान अल्लाह मियाँ से रिक्वेस्ट कर रहा था, अल्लाह मियाँ एट लीस्ट गिव इट टू मी टुडे। कम से कम अल्लाह मियाँ आज तो दे दीजिए। टुडे इज़ द सेकेंड डे, आज दूसरा दिन है। देन आई सेड, ऑल राइट, कम लेट्स प्ले अ गेम। and now the boy is planning to have a deal with God। Okay, so he said कि then here then I said, all right, let's come and गेम। ठीक है, कहता है कि ठीक है चलो एक गेम खेलते हैं, भगवान से कह रहा है, ही इज सेइंग टू गॉड दैट ठीक है चलो एक गेम खेलते हैं। आई विल गो फ्रॉम हियर टू दैट सिग्नल, यू सेक्रेटली प्लेस योर 4 रुपीज अंडर दिस बैग रॉक, आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक। ठीक है, वॉट फन इट विल बी इफ आई पिक अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज अंडरनीथ। ठीक है, कहता है कि चलो एक गेम खेलते हैं कि मैं यहाँ से दौड़ के वो सिग्नल टच करने जाऊंगा और आप क्या करना कि ये बड़ा सा जो पत्थर है इसके नीचे चुपके से
₹4 रख देना। आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक, मैं सिग्नल टच करूंगा और वापस आऊंगा। वॉट फन इट विल बी इफ आई पिक अप द रॉक एंड फाइंड ₹4 अंडरनीथ, और कितना मजा आएगा कि मैं जब रॉक उठाऊंगा और उसके नीचे ₹4 मिलेंगे मुझे। ठीक है, इट्स ऑल हैपन लाइक द चिल्ड्रेन डू। छोटे बच्चे ऐसे ही कहते हैं ना कि चलो ये करते हैं, मैं वहां पे टच करके आ रहा हूँ, आप ये करके रख देना, लाइक दैट। ओके, इन द सेम मैनर द बॉयज इज डीलिंग विद द गॉड कि चलो एक गेम खेलते हैं, हम वहाँ से सिग्नल टच करके आएंगे, आप चुपके से तब तक पैसा रख देना रॉक के नीचे, एंड व्हेन कितना मजा आएगा जब मैं रॉक उठाऊंगा और उसके नीचे मुझे ₹4 मिलेंगे। ठीक है, सो आर यू रेडी? अब आप ठीक हो, तैयार हो आप? आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सिग्नल, 1 2 3। ओके, सो ही सेइंग है कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ सिग्नल टच करने। और जैसे हम नॉर्मल जब गेम प्ले करते हैं और हम लोग स्टार्ट करने से पहले काउंट करते हैं 1 2 3 लेट्स स्टार्ट, लाइक दैट। ठीक है, तो वो भी कह रहा है 1 2 3, एंड देन ही वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न, वो सिग्नल पे जाता है और रिटर्न आता है स्माइलिंग। ठीक है, वो मुस्कुराते हुए वापस आ रहा है कि हो ना हो पैसे होंगे, बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वो रॉक उठाऊं। वॉट इफ द कॉइन्स वर नॉट देयर, क्या होगा अगर वहाँ पे सिक्के ना हो तो। ठीक है, टू बट देन आई थॉट व्हाट इफ दे वर, लेकिन फिर मैंने सोचा और क्या, तब क्या जब अगर वहाँ पे सिक्के हों। ठीक है, फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक, दिस बिग हेयर this big hairy worm got up and curling and twisting wriggled towards me, और फाइनली बिस्मिल्लाह करते हुए जब मैंने पत्थर उठाया, दिस बिग हेयरी वर्म, बड़ा सा कीड़ा, ठीक है, हेयरी वर्म जिसके हेयर्स हैं, ठीक है, बड़ा सा कीड़ा उठा, एंड कर्लिंग, कर्लिंग मीन्स घुमावदार हो रहा है। ठीक है, कर्ल हो रहा है, एंड ट्विस्टिंग रिगल टुवर्ड्स मी, जो कर्ल है, ट्विस्टेड है, और वो क्या हो रहा है मेरी तरफ, रिगल मीन्स रेंगना शुरू कर दिया। आई स्क्रीम्ड एंड रन अवे एंड वंस अगेन टच द सिग्नल, और मैं चिल्ला के वहाँ से रैन अवे, आई मैं वहाँ से भागा, एंड वंस अगेन टच द सिग्नल, और एक बार फिर जाके सिग्नल टच किया। देन crawling on my hands and knees I reached the tree, मैं वापस से फिर से एक ट्री तक पहुंचा। I tried my best not to let my eyes stray towards the rock, ठीक है, मैंने कोशिश करी कि मेरी आंख वहां से ना हटे, अपनी मेरी नज़र ना हटे रॉक से। बट एज आई पिक अप माई बैग एंड आई वॉज अबाउट टू लीव, लेकिन मैं जैसे ही अपना बैग उठाया और वहाँ से निकलने की सोचा कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक, फिर मेरे मन में आया कि चलो एक बार और रॉक के नीचे देख ही लेते हैं क्या होता है। एंड डू यू नो वॉट आई सा देयर, क्या आपको मालूम मैंने क्या देखा? आई सा मिस्टर वॉर्म क्वाइल्ड ऑन इट कंफर्टेबली स्टेरिंग एट मी, और मैंने देखा कि जब मिस्टर वॉर्म थे जो पहले मेरी तरफ रिगल करने लग गए थे, अब क्या है कि ही इज सिटिंग कंफर्टेबली, वो आराम से कंफर्टेबली बैठे हुए और मुझे ही घूर रहे हैं। स्टेरिंग एट मी मीन्स मुझे घूर रहे हैं। आई वॉकड अवे थिंकिंग टुमारो आई विल डू वज़ू, और मैं ये सोच, अब आज भी उसको पैसे मिले नहीं थे, भगवान जी ने उन्हें उसे आज भी पैसे नहीं दिए। नाउ इज थिंकिंग कि अगले दिन क्या करना है। आई वॉकड अवे, मैं वहाँ से चल पड़ा, थिंकिंग ये सोचते हुए कि टुमारो आई विल डू वज़ू, मैं कल वज़ू करूँगा। वज़ू मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है, बिफोर ऑफरिंग द नमाज, ठीक है, नमाज शुरू करने से पहले एक प्रोसेस होता है जिसमें अपने हैंड्स और हाथ पैर को धुलते हैं। ठीक है, प्रेयर करने से पहले हाथ और पैर धुलते हैं, उसको कहते हैं वजू करना। ठीक है, सो ही डिसाइडेड कि टुमारो आई विल डू वजू, मैं वजू करूँगा। वियर क्लीन वियर क्लीन क्लॉथ्स एंड कम हियर, साफ सुथरे कपड़े पहनूंगा तब यहाँ आऊँगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून आई कीप रीडिंग द नमाज, और सुबह से दोपहर तक मैं सिर्फ नमाज पढ़ूंगा। इफ़ इवन आफ्टर दैट अल्लाह मियाँ डजंट गिव मी ₹4, आई विल बी फोर्स टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन और मेक डील विद हिम। ठीक है, कहना अगर उसके बाद भी अल्लाह मियाँ ने मुझे ₹4 नहीं दिए तो मैं मजबूर हो जाऊंगा, ठीक है, ये सोचने के लिए कि अल्लाह से बार्गेन कैसे करें, उनसे सौदा कैसे करना है, ठीक है, बार्गेनिंग कैसे करनी है उनसे, वो अब मैं सीखूंगा कि बार्गेनिंग कैसे करनी है या फिर उनसे डील कैसे करना है। ठीक है, कोई भी डील होती है कि तुम बदले में मुझे ये दे देना, मैं तुम्हें वो दूंगा, लाइक दिस टाइप ऑफ डील, और बार्गेनिंग की इतने में नहीं, इतना अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसे मान जाओ, ठीक है, लाइक दिस इज कॉल्ड बार्गेनिंग एंड ऑल।
After all, if my Allah Mia doesn't give me money, my 4 rupees, then who will? After all, क्योंकि अगर मेरे अल्लाह मियाँ मुझे पैसे नहीं देंगे तो कौन देगा? दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम, जब उस दिन मैं जब वापस घर आया, अपेरेंटली फॉर स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम रेलवे स्टेशन, अपेरेंटली मीन दिखाने के लिए स्कूल से आया, बट एक्चुअली मैं कहाँ से आया था? रेलवे स्टेशन से आया था। आई वॉज कॉट, मैं पकड़ा गया। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम, और जो मेरे बार बार रोज रोज एब्सेंट होने का जो रिपोर्ट था, क्योंकि आई वॉज escaping from the school, I left the school, I turned off towards the railway station from the school gate, I didn't attend the classes and all। ठीक है, तो ये इसकी रिपोर्ट मेरे घर भेजी जा चुकी थी कि मैं 2 दिन से एबसेंट चल रहा हूँ। इट्स यूजलेस टू डिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, और ये व्यर्थ है ये बताना कि उसके बाद क्या हुआ। ओके, एंड ऑफ कोर्स क्या ही होता है पकड़े जाने के बाद, वेल वट एवर हैपेंड हैपेंड, ठीक है। बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड आई केप्ट वंडरिंग इफ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 rupees दैट डे, व्हाट हार्म कुड बी हैव पॉसिबली कॉज्ड एनीवन। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, वेल वट एवर हैपेंड हैपेंड, जो हुआ सो हुआ। बट अप टू 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड आई वॉज कीपिंग, आई वॉज केप्ट एस्टिमेटिंग दैट, वंडरिंग दैट कि अगर अल्लाह मियाँ उस दिन मुझे 4 रुपए दे दिए होते, ठीक है, 7th या 8th स्टैंडर्ड तक मैं यही सोचता रहा कि अगर उस दिन अल्लाह मियाँ ने हमें 4 रुपए दे दिया होता तो किसी का क्या बिगड़ जाता, वॉट इट हैव पॉसिबली कॉज्ड एनी वन, किसी का क्या हो जाता, क्या बिगड़ जाता। इट वॉज ओनली लेटर, ये बहुत बाद में मुझे समझ आया, आई केम टू द कंक्लूजन दैट इफ अल्लाह मियाँ वर प्रोवाइड ऑल फॉर द आस्किंग, then man would even today be living in nest like vulture and crows and would not have learned the art of making जलेबी। और ये बहुत बाद में हमें समझ आया, ठीक है, कि अगर हर कोई जो कुछ मांगता हो, अगर अल्लाह मियाँ सबकी फरमाइशें पूरी करने पे लग जाएं, इफ़ अल्लाह मियाँ वर टू प्रोवाइड ऑल फॉर द आस्किंग, सब लोग जो जो जैसा मांग रहा है अगर वो सारी फरमाइशें पूरी करने लग जाएं, तो आज भी इंसान घोंसले में रहेगा। इवन टुडे ही विल बी लिविंग इन नेस्ट लाइक वल्चर एंड क्रो, जैसे कि वल्चर रहते हैं एंड क्रोज रहते हैं, ठीक है, वैसे ही मनुष्य भी नेस्ट में रहना शुरू कर देगा, लाइक वल्चर एंड क्रो। व्हाट डू दे डू कि वो बस जाते हैं, खाना तलाशते हैं, और उनको खाना मिल गया तो मिल गया, कोई अगर एनिमल मरा पड़ा है तो उसके ऊपर जाके फीड कर लिया है, इस तरीके से, ठीक है। तो उनको जो चाहिए होता है वो बिना मेहनत के उनको मिल जाता है। सो अगर ह्यूमन बींग को भी जो कुछ चाहिए होता अगर भगवान उनको दे देते, तो वो आज भी जलेबी कैसे बनाते हैं इसकी कला नहीं सीख पाता। द मैन वुड नेवर लर्न हाउ टू मेक जलेबीज। ओके, सो ये ज़रूरी है कि जो चीज़ें हम मांग रहे हैं या फिर जो भी ह्यूमन बींग अगर अल्लाह मियाँ से या गॉड से जो कुछ भी प्रे कर रहे हैं, तो अगर गॉड उसको नहीं दे रहे हैं, आपकी प्रे अगर पूरी नहीं हो रही है, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, आपको जो आप भगवान से मांग रहे हैं अगर आपको नहीं मिल रहा, इट मीन्स द गॉड वॉन्ट्स यू टू वर्क। गॉड चाहते हैं कि आप वर्क करें, ठीक है। अगर आप वर्क नहीं करेंगे तो आप हमेशा थ्रू आउट द लाइफ यू विल बी हैबिचुअल टू आस्क फॉर द गॉड, ठीक है। आप हमेशा हमेशा आदत लग जाएगी आपको मांगने की, ठीक है। सो दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी। ओके, सो लेट्स इन हियर ओनली। ओके, थैंक यू।